Hello everyone, welcome to SST College of Arts and Commerce. I am Assistant Professor Padma Deshpande. I welcome you to this SST Edupedia. Dear students, last lecture I had conducted on Foundation of Human Skills, and in that I had completed two chapters, that is Basics of Human Nature and the factors that differentiate individuals, that is the inter-individual differences and the intra-individual differences. So now continuing further, today we are going to see chapter 3 in unit 1, that is Personality, Theories and Traits. This subject, Foundation of Human Skills, comes under your semester 1 of first year. So let's continue. So what is personality? Personality is basically, it is derived from the Latin word persona. Persona means it makes an individual unique from others. Every individual is unique. Every individual has certain characteristics, certain traits which makes him unique, right? We see a person who is tall, we see a person who is short, somebody is fat, somebody is thin, somebody is dark skinned, somebody is light skinned. So all these are the outer experience, outer parts. But what about the intelligence of the person, the attitude of the person, the nature of the person? So all these are the internal aspects, and this makes a person unique from others. In the words of Cattell, personality is defined as that which permits a prediction of what a person will do in a given situation. Now there are different personalities. Some people are very fun loving, some people are very silent, some people are very courageous, some people are very timid. वो बहुत जल्दी जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी टेंशन ले लेते हैं, एंजाइटी हो जाता है. So these are various personalities. So in the words of Cattell, personality वो चीज़ होता है which predicts एक individual एक particular situation में कैसे behave करेगा. Now there is a model which is given by which is named as Big Five Model Theory. So इस theory में individuals को 5 dimensions में divide किया गया है. There are 5 basic dimensions of a personality. So what are these dimensions? Let's see one by one. The first dimension is known as agreeableness. So ये agreeableness में आता है high agreeableness या low agreeableness. Agreeableness means the person getting along with others, like how we cooperate in a group, how we are able to adjust ourselves in a situation. So persons who are high in agreeableness, they get along with everyone, and they are good team players, and they are able to work well and cooperate well in the group. On the other hand, people who are low on agreeableness will always behave in the opposite manner. जो high agreeableness के होते हैं उसके totally opposite low agreeableness में होते हैं. They are demanding and they are basically unfriendly people. Then the second type of personality dimension is conscientiousness. Now what is conscientiousness? Conscientiousness means अपना काम एकदम disciplined and complete manner में करना. There are some people who are very specific, who are very thorough, and who like to do things in a particular manner. They are very achievement oriented. They like to do all the tasks with perfection. And people who are low in conscientiousness lack the ambition. They are very unorganized. कैसे तो भी काम निपटाना है, खत्म करना है. They do not have any self discipline. They lack discipline. So people who are high in conscientiousness will be organized, and जो low होते हैं they will be inorganized. Then the third dimension is the emotional stability. Emotional stability is basically the ability to deal with stress. अब जिनका पास positive emotional stability होता है, these people are able to take care of their emotions. They are calm, they are confident, they are enthusiastic, and they are free from negative feelings. On the other hand,
people who have negative emotional stability, they tend to be, they will be nervous होते हैं, they are always depressed, they are insecure, ये बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, they are anxious and they are very emotionally reactive. So ये 3 डायमेंशंस हो गए. कौन से आपने किया? पहले एग्रीएबलनेस किया. एग्रीएबलनेस मतलब गेटिंग अलॉन्ग विथ अदर्स. सेकेंड होता है कंसिस्टेंटनेस, यानी ऑर्गेनाइज, हम कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने डिसिप्लिन हैं. एंड ये लो इन कंसिस्टेंटनेस में दे आर अनऑर्गेनाइज्ड एंड दे लैक डिसिप्लिन. देन इमोशनल स्टेबिलिटी, थर्ड डिसिप्लिन डायमेंशन आता है. इसमें इट इज़ द एबिलिटी टू डील विथ अवर विद द स्ट्रेस फैक्टर. सो इसमें आके पॉजिटिव आता है एंड नेगेटिव इमोशनल स्टेबिलिटी आता है. जो पर्सन्स पॉजिटिवली इमोशनली स्टेबल रहते हैं, दे आर एबल टू डील विथ एंग्जाइटी, दे आर काम, वो हर एक चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं. एंड पीपल हु आर हैविंग नेगेटिव इमोशनल स्टेबिलिटी, दे आर नर्वस, डिप्रेस्ड, एंशियस एक्सेट्रा. देन द फोर्थ डायमेंशन इज ओपननेस टू एक्सपीरियंस. इसका मतलब है कि हाउ ईगर यू आर टू लर्न न्यू थिंग्स और यू नो योर इंटरेस्ट, कौन से वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट होते हैं. सो पीपल हु आर एक्सट्रीमली ओपन टू एक्सपीरियंस, दे आर ऑलवेज इंटेलेक्चुअली क्यूरियस. इनको कुछ तो नया हमेशा सीखना होता है. ये कोई नई चीज़ के बारे में पता चलता है तो दे आर अप्रिशिएटिव अबाउट इट, दे आर मोर आर्टिस्टिक, वो सेंसिटिव होते हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव टू ब्यूटी, दे आर एडवेंचरस, दे लाइक समथिंग न्यू, इनोवेटिव होना चाहिए. सो जो लोग नया चीज़ ट्राई करना चाहते हैं, जो नए एडवेंचर्स पे जाना चाहते हैं, दे हैव दिस डायमेंशन दैट इज़ ओपननेस टू एक्सपीरियंस. एंड पीपल हु आर हैविंग लो लेवल ऑफ ओपननेस, ये आके कन्वेंशनल मोड, मतलब एक पर्टिकुलर तरीके से ही इनको काम करना अच्छा लगता है. दे डोंट लाइक एनीथिंग समथिंग न्यू, या फिर इनके इंटरेस्ट लेवल भी कम होते हैं. ये एक पर्टिकुलर पैटर्न में ही काम करना पसंद करते हैं, अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं. देन द फिफ्थ डायमेंशन इज नोन एज द एक्सट्रोवर्ट्स एंड द इंट्रोवर्ट्स. जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं, they are very active people, they are full of energy and they always have positive emotions, they always want to be the center of attraction. ये actively कहीं पे भी participate होते हैं, इनकी जल्दी से बहुत जल्दी लोगों के साथ दोस्ती हो जाती है, ये कहीं पे भी mix up हो जाते हैं. and जो introverts होते हैं वो totally opposite of extroverts होते हैं. they are very reserved, they are quiet, उनमें एक एनर्जी लेवल भी कम होता है, थोड़े से डरे हुए से रहते हैं, दे इजीली गेट हर्ट, कोई कुछ बोलेगा, शांत होते हैं. एंड बहुत बार ये डिप्रेशन में भी जाने के इनके चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये अपने फीलिंग्स को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं. सो दीज आर द 5 डायमेंशंस अंडर द बिग 5 मॉडल थियोरी. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन पर्सनैलिटी थियरीज में आता है जोहारी विंडो. नाउ जोहारी विंडो वॉज डेवलप्ड बाय जोसेफ लुफ्ट एंड हैरी इंगम इन द ईयर 1995. सो ये बेसिकली एक टेक्निक है विच विल हेल्प द मैनेजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन to understand how people are, how their relationships are and how they deal with others. So in the Johari window, ये जोहारी जो नाम लिया हुआ है, it is taken from the names of Joseph Luft and Harry Ingham. So Joseph का जो लिया है and Harry Ingham का Harry लिया है. So that's why it is known as जोहारी विंडो. नाउ इन्होंने पर्सनालिटी को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया हुआ है. द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट. जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है दैट इज नोन एज द ओपन एरिया. यहाँ पे जो पिंक कलर का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें क्या है, इट इज बेसिकली हम अपने आप के बारे में क्या जानते हैं, व्हाट यू नो ऑफ योर सेल्फ एंड व्हाट इज नोन टू अदर्स. So in an organization the environment should be given in such a way that ज़्यादा से ज़्यादा ये open area जो होता है ये ज़्यादा से ज़्यादा
डेवलप हो। तो इसमें क्या होता है, इसमें आता है मेरा एटीट्यूड्स, माय फीलिंग्स, माय इमोशंस। सो व्हेन सी आई एम बेसिकली एन पर्सन हु वुड लाइक टू स्पीक, मतलब मैं जो भी रहेगा वो तुरंत बोल देती हूँ, मैं ऐसे मन में कुछ रखूँगी ऐसा नहीं है, आई एम आउटस्पोकन। सो ये ओपन एरिया होता है, दिस आई ऑल्सो नो, एंड जो मुझे अच्छे से पहचानते भी है दे ऑल्सो नो दैट ये पर्सन जो है ये आउटस्पोकन है, ये कुछ भी अपने दिल में नहीं रखते हैं, जो रहता है वो मुंह पर बता देते हैं। सो ये जो होता है, दिस ओपन एरिया जो होता है, इसमें हम अपने इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हमारा नॉलेज जो होता है, हमारे एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, इन माई ओपिनियन या मेरा व्यूज जो होता है, ये हम शेयर करते हैं। द सेकेंड क्वाड्रेंट इज नोन एज द ब्लाइंड एरिया। अब ये वो एरिया होता है जो हमें नहीं पता होता है बट दूसरों को मालूम होता है। से फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एक स्पीच दे रही हूँ, सो मुझे ऐसे लग रहा है कि मैंने वो स्पीच बहुत अच्छे से दिया है। हो सकता है कि मैंने वो स्पीच में बहुत सारे मिस्टेक्स किए हों, या फिर मेरे जो पॉइंट्स थे वो प्रॉपर नहीं थे, या फिर मेरा जो टोनिंग था वो प्रॉपर नहीं था, या द वे आई हैड ड्रेस वाज नॉट प्रॉपर। So how I will know about this? If I ask others. So in blind area basically it focuses on feedback. So हम अपने आप के बारे में जो हमें नहीं पता होता है, अगर वो हमें जानना है तो we should ask for feedback. And the second important thing is we should always develop the habit of good listening. अगर हम अच्छे listeners होंगे ना तो हम दूसरों को सुनेंगे, हमारे में जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है या फिर जो लैकिंग्स है उसको हम इम्प्रूव तभी कर सकते हैं। सो दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। देन द थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है, दिस इज नोन एज द हिडन एरिया। ये वो पोर्शन होता है जो हमें पता होता है बट वी डू नॉट लाइक टू शेयर। सो इट इज़ बेसिकली हमारा जो पर्सनल फीलिंग्स होता है या प्राइवेट इन्फॉर्मेशंस होते हैं, ये हम जल्दी से बहुत से लोगों के ना मन में बहुत कुछ होता है बट दे डोंट वांट टू एक्सप्रेस, थिंकिंग दैट कि सामने वाला क्या सोचेगा, या फिर वॉट एवर आई से पीपल विल टेक इट इन अ नेगेटिव एस्पेक्ट ऐसे। सो ये एवरी ऑर्गेनाइजेशन में द मैनेजर्स मस्ट focus on providing an environment in which people will come and talk. So इसके लिए क्या ज़रूरी है, एनवायरमेंट जो होना चाहिए, इट शुड बी कॉर्डियल एनवायरमेंट। पीपल शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस, टू गिव, दे शुड बी एबल टू गिव देयर व्यूज, दे शुड बी एबल टू शेयर देयर फीलिंग्स। दिस विल क्रिएट एन एनवायरमेंट फॉर द पीपल फॉर सेल्फ डिस्क्लोजर. So this is your third area, and the fourth area is known as the unknown self. Unknown self is कि ये हमें खुद को भी नहीं पता होता है और सामने वाले को भी नहीं पता होता है. Sometimes due to certain experiences हमको पता चलता है कि this skill भी मेरे में है. Say for example, कभी किसी ने कोई गाना वाना कुछ गाया नहीं है and all of a sudden उसको एक बहुत सुंदर सा गाना गाने को बोला है, तो he sings that song in a very beautiful way and suddenly that person realizes, मतलब उसको जब तारीफ मिलती है तब उसको रियलाइज होता है कि I have this ability of good singing also. So this is like मुझे भी आज तक नहीं पता था ये मेरे में टैलेंट है, आज ही मुझे पता चला कि ये भी मेरे में एक टैलेंट है. ये दूसरों को भी नहीं पता चलता. जब मेरा आवाज़ सुना तभी उनको पता चला कि अरे ये पर्सन का आवाज़ कितना मस्त है, ये कितना अच्छा गाता है या गाती है. सो दिस इज़ द अननोन सेल्फ, जो हमें खुद को भी नहीं पता होता है एंड जो दूसरों को भी नहीं पता होता. बहुत बार आपने ये सिचुएशन भी महसूस किया होगा कि आप कोई जगह पे जाते हो जिसको हम लोग फोबिया बोलते हैं. तो ऐसा होता है कि आप कभी पानी के पास गए तो आपको डर लगने लगता है, या कभी आप एक बंद कमरे में हो, अंधेरे में हो, तो आपको सडनली डर लगता है. ये क्यों होता है आपको पता नहीं है. देन sometimes even the people around you they also don't know कि ये क्यों ऐसे हो रहा है. then it is possible like कभी आपके पेरेंट्स या कोई आपकी दादी या कोई ऐसे आपको बताएगी कि बचपन में ना आप ना तालाब में गिर गए थे और आप डूबते डूबते बच गए थे, तो इसके वजह से आपके मन में वो डर बैठ गया है कि पानी का. हो सकता है बचपन में जब आप छोटे थे तब ये बात हुई होगी,
इतने सालों में आप उसके बारे में कंप्लीटली भूल गए हो, एंड सडनली कुछ सिचुएशन ऐसे आता है तब आपको वो डर के बारे में पता चलता है. सो दिस इज नोन एज द अननोन टू सेल्फ एंड अननोन टू अदर्स ऑल्सो, बट ड्यू टू सम एक्सपीरियंस वो अभी आपको पता चला है. इसमें मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए, वन वॉज द सिंगिंग टैलेंट एंड द अदर वन वॉज ऑफ द स्विमिंग का, जो पानी का जो डर होता है, फोबिया के बारे में मैंने आपको बताया. सो जोहारी विंडो में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि हमारा पर्सनालिटी को डिफाइन करता है. तो ये सब पर्सनालिटीज के मतलब इसको लेकर कभी भी ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स शुड सी टू इट दैट कि एक कंडसिव एनवायरनमेंट इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज. Okay, so hopefully you have understood the concepts, and we'll continue with this session in the next lecture also. Till then, stay connected and take care. Bye bye.